Okay, welcome to the Honors Kindergarten and Secondary School, Lahore. I am your mathematics teacher and will be discussing subject Maths of Standard 3. Today is lecture number 3. We are going to discuss multiplication. The topics on the book are given on page number 68 to 84. We will be discussing converting ones, word problems, converting ones, tens, and hundreds, order in multiplication, multiplying by 10 and its multiples, vertical form of multiplication, and multiplying by 100 and its multiples, and then multiplication of 2-digit and 3-digit numbers. Now, first of all, we will discuss what is multiplication. Multiplication is just repeated addition. मतलब multiplication or addition, they are siblings. So multiplication is just another form of addition. So it is a fast way of adding a series of numbers. For example, take a look on an example in which we are multiplying 2 with the 4. That is 2 multiplied 4 is equals to 8. इसका मतलब क्या है कि अगर हम 2 को 4 times add करें तो we will get 8. Here look, 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equals to 8. It is the same as multiplying 2 into 4 which is also equals to 8. ये सिर्फ हम किस लिए करते हैं? फॉर आर कन्वीनियंस एंड फॉर शॉर्टेज ऑफ टाइम. अपने टाइम को बचाने के लिए वी यूज़ मल्टीप्लिकेशन इंस्टेड ऑफ एडिशन. So taking into consideration another example, which is 3 multiplied by 3. 3 multiplied 3 is equals to 9. It is same as adding 3 times. That also gives 9. So first of all, you have to learn the tables by heart to understand all of these multiplication. So learn tables by heart and then you will be very convenient with multiplication. Coming to the other part, we will be discussing parts of multiplication. Multiplication has 3 parts. इसके कितने parts हैं? 3 parts: multiplicand, multiplier and product. Multiplicand is the number which is multiplied by another number, and multiplier is the number of times the multiplicand is to be multiplied, and the result of multiplication is called product. So multiplicand क्या होता है? ये वो नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरे नंबर के साथ. और मल्टीप्लायर क्या होता है कि नंबर ऑफ़ टाइम्स आप जितना मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेंड को, उसको कहते हैं हम मल्टीप्लायर. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पे एक लुक देखें, यहाँ पे 13 है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लिकेंड है. और हमने जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर. और जो इनका आंसर आया मल्टीप्लाई करके, दैट इज़ 78. तो ये क्या है? प्रोडक्ट. So this is multiplicand, multiplier and product. Coming to the next part, simple multiplication. Here there are 3 groups and each group has 4 dogs. So you can see in all your screens that we have 3 groups, 1, 2 and 3. And in each group we have 1, 2, 3 and 4 dogs. So if we want to know how many total dogs are there, so we will multiply 3 boxes with 4 dogs. So how many groups are there? There are 3 groups. How many dogs are in each group? There are 4 dogs. So we can solve it simply by adding 4 plus 4 plus 4 giving us 12, or we can simply multiply 3 with 4 giving us 12. So दोनों तरीक़ों से हमारा आंसर क्या आएगा? 12 आएगा. आइदर वी मल्टीप्लाई और आइदर वी ऐड. इसीलिए हमने इनको क्या कहा था कि दे आर सिबलिंग्स. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, देयर इज़ एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 68 and 69. सो यू कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ द गिवन की. आपने इन न्यूमरल्स को देखना है और जो मिसिंग न्यूमरल्स हैं उनको आपने फाइंड आउट करना है. सो डू इट एट योर होम. Okay students, now coming towards the multiplication part 2, which is converting ones. इसमें आपने क्या करना है? 2 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना. और इसमें 2 पार्ट्स आते हैं फर्दर. फर्स्ट पार्ट इज़ नो कैरी और नो रीग्रुपिंग एंड विद कैरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस नो कैरी, जिसमें हमें कोई भी कैरी नहीं लेना. अगर यहाँ पे हम 3 है विच इज़ मल्टीप्लायर एंड 32 इट इज़ अ मल्टीप्लिकेंड, हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई 3 विद 2. इट विल गिव अस 6. 3 2s are 6. Now we will multiply this 3 with that 3 and it will give us 9. So it will give the whole answer product as 96.
इसमें हमें कोई भी कैरी नहीं लेना पड़ा, हमारा डिजिट आंसर जो था वो 1 डिजिट आंसर था, लाइक 3 2s are 6 1 digit, 3 3s are 9 1 digit. So coming towards the carry part, here we have 3 7s are 21. So अब हमारे पास कितने डिजिट्स आ गए आंसर में, 2 डिजिट्स, 20 एंड 21, सो 1 एंड 2. सो हमने जो राइट पार्ट होगा हमारे आंसर का जो कि 1 है, 21 का राइट पार्ट क्या है, 1. सो आपने 1 को प्रोडक्ट नंबर में लिख देना प्रोडक्ट लाइन के अंदर, और जो 2 होगा वो आपने उसको ट्रांसफ़र कर देना 6 को एज अ गिफ्ट, ठीक है कि भाई ये आप ले लें. अब क्या होगा, हम इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 3 6 are 18. 18 में जो हमें गिफ्ट मिला था उसको हमने ऐड कर देना है, तो 3 6 are 18 plus 2 is equals to 20. So the whole answer will become 201. So this is product, this is multiplicand, and this 3 is multiplier. Let's take a look onto another example, which is 24 multiplied by 5. So here we will multiply first 5 with the 4, okay? So 5 4s are 20, 0 and 2 as a gift to the 2. So now 5 with this 2, 5 2s are 10, and 10 में हम ऐड कर लेंगे इस कैरी को जो गिफ्ट था उसको, so it will become 12. तो आंसर is 120, या 5 2s are 10, 12 हमने नीचे लिख लिया, and the product is 120. Here multiplicand is 24, multiplier is 5, and the product is 120. Now there is an exercise on page number 70. You have to solve it with the help of the given key. So it will be very easy for you guys, so do it at your home. Okay students, now coming towards word problems. First of all, you have to take in care in your mind that problems are not difficult. First of all, get this thing. It is not at all difficult. You have to just understand the problem and then think okay, what I have to do, what operation I have to apply on. First of all, read it carefully, identify what we are looking for, and then identify that method okay, how will I solve this problem. For example, you can do addition, subtraction, multiplication, division. What can I do to solve to get our answer? For example, in this problem we say Perfine saves 4 buckets of water in one day. How many does she save in 1 week? So she says like कि Parveen saves water of 4 buckets in 1 day. मतलब वो 4 buckets of water को per day save कर रही है. So in 1 week, how many does she save? So first of all, we have to think कि how many days are in a week. We know there are 7 days in a week. So we will simply multiply 4 the per day buckets into 7 to get 7 days buckets water. So now coming towards the solution, number of buckets she saves per day is equals to 4. Number of buckets she saves per week, we have to find out this question mark. How many days are in a week? There are 7 days in a week. So total number of buckets, how will we get this? We will multiply 4 into 7, we will get 28. So 28 buckets of water she will save in 1 week. Okay, understand it? Coming towards next part, multiplication, converting ones and tens. Okay, there are following steps to do this. First of all, first step is to multiply ones first. जो आपका multiplier है, you have to multiply it with the ones part of the multiplicand. So here we have 2 multiplier and 2143 as multiplicand. So one part जो है इसका multiplicand का वो 3 है. अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो वी विल गेट 6. सो वी राइट 6 इन द प्रोडक्ट नंबर ऑफ द वंस. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द टेंथ प्लेस. सो 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने टेंथ प्लेस वाले नंबर को जो कि है 4. सो 2 4s are 8. सो वी राइट 8 इन द प्रोडक्ट नंबर. Now this is the step 2. First of all, we multiply with the ones, then tens, and now moving towards hundreds. Here we multiply this 2 with the hundreds number, which was 1. So 2 ones are 2. Now final step, step 4, we have to multiply with this 2, that is multiplier with the 1000 number place. 1000 number place में क्या लिखा हुआ है 2. 2 multiplies by 2 gives us 4. So the total answer will become 4286. So we multiply 2143 with the 2, which gives us 4286. Okay, now this was converting ones and tens. Now coming towards the
example which is on page number 72. You have to solve the whole page with this given example. Okay, so first you have to take a look on examples very carefully so that you can solve the problems later on. Okay, and you have to learn the tables by heart to do these things quickly. Now we have multiplication converting hundreds. So first of all, you have to see on the thousand place. Okay, in question we do not have anything written on this thousand place. Okay, so what we will do, we will multiply this hundred place multiplicand with the multiplier, and we will get an answer which is thousands in number. Okay, so let's do this one. So first of all, we will multiply this 4 with the 5, we will get 20. So 20 में क्या होगा, we will write 0 in a product and 2 as a gift to the 6. So 4 6 are 24. 24 में जो 2 था हमारे पास carrying a gift, हम उसको add करेंगे तो 24 plus 2 is equals to 26. तो 6 यहाँ पर लिख लिया हमने in the tens place, and then 2 again on the 3 as a gift. 4 3s are 12. 12 plus 2 5. 12 plus 2 14. So what was the answer? 1460, जो कि कौन सी प्लेस में आ रहा है, थाउजेंड प्लेस में एग्जिस्ट कर रहा है. पहले हमारे पास कोई नंबर थाउजेंड प्लेस में नहीं था, सारे हंड्रेड प्लेस में थे. सो अब हमने क्या कर दिया, हमने कन्वर्ट कर दिया है हंड्रेड्स को थाउजेंड्स के अंदर. सो दिस वाज इट. नाउ अब हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना है विच इज़ मल्टीप्लाइंग बाय 10. While multiplying a whole number with 10, we will simply add 0 at the end of the whole number. कोई नंबर है हमारे पास, होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और एंड करते हैं, बिल्कुल मतलब वो चलते रहते हैं. ठीक है, जैसे 10 20 30 40 50 59 60, मतलब कॉन्टीन्यूड नंबर जो भी नंबर है. इनमें से किसी भी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सिंपली क्या ऐड कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे उस नंबर के एंड पे. फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे अगर हम देखें एग्जांपल में लिखा हुआ है कि 3 है. ठीक है, 3 है, 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो हमने सिंपली 3 के साथ 0 लगा देना, तो क्या बन गया 30. सिंपल. अगर हम एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देख लें, 4 37 15. 15 के आगे भी आप क्या ऐड कर देंगे, 0, तो 150 बन जाएगा. नाउ अगर आप देखें नीचे लास्ट वाला है 437, इसके आगे भी हमने सिंपली क्या ऐड कर दिया हुआ है 0, और वो 4370 बन चुका हुआ है. ये 150 से नीचे वाला हम देखें अगर. ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स मल्टीप्लाइंग बाय 10 एंड इट्स मल्टीपल्स. अब पहले हम खाली 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं, 10 20 30 40 50. ठीक है, ये सारे इसके मल्टीपल्स होते हैं 10 के. हमने एक नंबर ले लिया, सेम नंबर है 22, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है इन मल्टीपल से. हमने क्या करना है, हमने इस 22 को 2, अगर ये 10 है तो हमने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. एक दफ़ा हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमने इसको 0 उसको मल्टीप्लाई करना है इस 10 से दोबारा. फॉर एग्जांपल आप देखें 22 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, वी गेट 22. देन आपने मल्टीप्लाई करना है 22 को 10 से. ठीक है, 22 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमने सिंपली 0 ऐड कर देना था, तो 220. अब ये वाला पार्ट तो डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें तो नॉर्मली अगर हम 22 को 10 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली भी करेंगे तो आंसर हम 0 लगा देते आगे. लेकिन आगे वाला पार्ट देखें, इसमें आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है. इसमें आप पहले 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, विच विल गिव अस आंसर 44. देन यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 10 अगैन. ठीक है, विच विल गिव अस आंसर 440. Now coming towards the next part, here is 30. So what will you do? You will first multiply it with the first digit, that is 22 multiplied by 3, which will give you 66. Now multiply this 66 by 10, and which will give you 660. Understand it? So you have to do first multiply it with the digit जो कि 0 के साथ लिखा हुआ है. Either it is 1 2 3 4 5 जो भी है, उससे मल्टीप्लाई करके then multiply with the 10. Okay, fine. सो कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे मैंने यही डिस्कस किया हुआ, यू विल गेट इट व्हेन यू विल हैव अ फुल प्रूफ प्रैक्टिस. ठीक है, सो प्रैक्टिस दिस डेली एट योर होम. स्टूडेंट्स व्हाट विल यू डू कि अगर यहाँ पे 8 है तो 8 को यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 20. सो फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई दिस 8 विद 2, यू गेट 16. ठीक है, 8 को 2 से किया, क्या बना 16. 8 2s are 16, and then you will multiply it with 10, which is 16 multiplied by 10, and you will get 160. Now take another example like 9 into 80. First you will multiply this 9 with the 8.
So you will get 72. 9 multiplied by 8, you get 72. And then the 72 will be multiplied by 10, which will give you 720. So this is a short form of multiplying big numbers of multiples of 10. It is convenient. ये आपका time save करेंगे and you will get results easily. Okay, done? Okay students, now coming towards the multiplying by 100. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर, अगर आपने एक बात सोचनी है, अब ज़ीरो की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, तो ज़ीरो क्या करता है, ज़ीरो अपने साथ लगे हुए किसी भी, अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ना, नॉट 1, 10 और 100, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, ठीक है, वो हर एक को ज़ीरो कर देगा. सो कीप इट इन योर माइंड कि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें, खाली ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ज़ीरो ही आएगा. किसी भी चीज़ को, हमें 1000 को मल्टीप्लाई कर दूँ ज़ीरो से, आंसर ज़ीरो आएगा. अब हम बात करते हैं, हमने मल्टीप्लाई करना है 1 से. अगर मैं किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी ना, तो उस नंबर की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सेम का सेम रहेगा. 1 कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता उसका. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 1 को विद 21, ठीक है, सो आंसर रिमेन्स सेम 21 नो मैटर व्हाट, ठीक है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मल्टीप्लाइंग विद 10, मैंने आपको बताया कि आप किसी चीज़ को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल ऐड 0 at that end of the whole number, ठीक है. so if you multiply 10, आपने मूव करना है all digits को to one place to the left, मतलब आपने उसको मूव करना है towards the left, और जो खाली प्लेस बची है उसमें आपने ज़ीरो लिख देना. जैसे 21 है तो आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपने 21 को मूव किया एक प्लेस लेफ्ट, और यहाँ पे आपने ज़ीरो को लिख दिया ऑन द राइट साइड. सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, so you will move all the digits 2 place left, putting a 0 in the empty spaces. So here is 21, I move it towards the, I am multiplying it with 100, and I'll move the 21 towards left of the 2 places, and I'll write 0 on the empty spaces, so I'll get 2100. Okay, you get it? So 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने 1 प्लेस लेफ़्ट मूव करा के नंबर्स को खाली जगह के ऊपर ज़ीरो लिख देना, मतलब नंबर के साथ लेफ़्ट पे राइट साइड पे ज़ीरो आ जाएगा, एक ज़ीरो. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे कितने ज़ीरो आ जाएंगे, उस नंबर से 2 ज़ीरो आ जाएंगे. ओके, नाउ दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल कि वी मल्टीप्लाई 4 इंटू 10. 4 एक साइड लेफ़्ट मूव किया, उसके साथ ज़ीरो आ गया क्योंकि एक ज़ीरो था 10 में. 100 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे क्योंकि 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2. और आपने 1000 से मल्टीप्लाई कराया तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 3 ज़ीरो, 4000 बन जाएगा. सिमिलरली टेक अनदर एग्जांपल, मल्टीप्लाइंग बाय 100 विद 83. सो 83 क्या करेगा, 83 2 प्लेसेस लेफ़्ट मूव कर गया, और यहाँ पे जो 2 प्लेसेस बची थी उसमें हम ज़ीरो लिख देंगे. तो इस 83 के साथ कितने ज़ीरो आएंगे, 2 ज़ीरो आएंगे क्योंकि 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं. सो take it in your mind. Now there is an exercise on page number 79. You have to solve it with the help of the given key. So solve it at your home and have a foolproof practice of it. Now multiplying 100 by its multiples. जिस तरह हमने 10th को मल्टीप्लाई किया था और उसके मल्टीपल से फिर मल्टीप्लाई किया था, similarly we will multiply the 100 in the same way. So okay. So it is the same as we did multiplication with 10 and its multiples. The only difference here is that we have to add 2 zeros as we are multiplying it with 100. For example, अगर हम यहाँ पे 8 multiply कर रहे हैं with the 200, we will first multiply 8 with 2. That will give us 16. फिर हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 100 से, और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, उसके आगे 2 ज़ीरो आ जाते हैं. तो what is it, 1600. Okay, now take another example, that is 15 into 300. First of all हम क्या करेंगे, हम 15 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, which will give us the answer 45, and then this 45 will be multiplied by 100, और 2 ज़ीरोज़ हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ज़ीरो आ जाता है राइट साइड के ऊपर, तो it will give us 4500. Okay, get it? Now there is exercise on page number 80. You have to solve it. Here is the given key. If you have any issue you can consult it. Okay, now multiplication of a 2-digit number. हमने पहले क्या किया, हमने मल्टीप्लिकेंट बड़ा था हमारा, मल्टीप्लायर हमने सिंगल यूज़ किया, सिंगल डिजिट, ठीक है, 1 डिजिट नंबर. अब हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं मल्टीप्लिकेंट को विथ 2-digit नंबर. सो इसमें आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा
कि जब आप वंस की प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब जैसे ये जो मल्टीप्लायर है ये वंस वाला मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं मल्टीप्लिकेंड के साथ, तो मैं वंस की प्लेस फिल रखूँगी। लेकिन अगर मैं ये टेंस वाला मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लायर जो टेंस की प्लेस में पड़ा हुआ है, जैसे 2 है इस टाइम टेंस की प्लेस में, तो मेरी ये प्लेस जो है ना वंस वाली वो खाली रहेगी, क्योंकि मेरा तो स्टार्ट ही 2 टेंस वाली प्लेस से हो रहा है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो जब टेंस वाली मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं तो वो उसको यहाँ पे लिख देते हैं वंस की प्लेस में, जो कि गलत है। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि अगर हम वंस वाले को स्टार्ट कर रहे हैं, हमने 6 को मल्टीप्लाई किया 8 से, इट गिव्स अस 48। मैंने 8 यहाँ लिखा और 4 को गिफ्ट दे दिया, कैरी करा दिया। 6 6 36, 36 में आपने वो गिफ्ट ऐड किया, 4 वो था, हमारे पास बन गया 40। तो ये आ गया 408। ये हमने 6 मल्टीप्लाई किया था तो आया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 2 को। अब 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 2 8 ज़ार 16। अब हमने 6 जो है 16 का जो 6 है वो हमने 8 के नीचे नहीं लिखना, दिस इज़ द रॉन्ग वे। हमने इसको लिखना है 0 के नीचे, टेंस वाली प्लेस के जहाँ पे 2 था उसके नीचे लिखना है, और इस जगह पे जहाँ पे वंस वाली प्लेस है वहाँ पे 0 लिख देना है। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, वंस की प्लेस में कुछ भी नहीं आएगा। इसको कहते हैं हमारे पास प्लेसमेंट। ठीक है ना, यहाँ पे हमने 0 ऐड कर देना। ओके, नाउ व्हाट इज़ दिस कि आपने मल्टीप्लाई किया 2 8 ज़ार 16 से 6 यहाँ पे लिखा, 1 ऊपर, कैरी में गिफ्ट चला गया 6 को, 2 6 ज़ार 12, 12 में आपने 1 ऐड किया, इट बिकम्स 13 एंड 13 यहाँ पे आ गया, तो 1360। नाउ वी हैव टू ऐड बोथ ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, 8 + 0 8, 6 + 0 6, 4 + 3 7 एंड 1। सो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्रोडक्ट क्या आया, 1768। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर कि हमने वंस की प्लेस में टेंस का कोई नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पे हमने इसकी जगह क्या लिखना है, 0 लिखना है। ओके फाइन, नाउ दिस इज़ कॉल्ड प्लेस होल्डिंग। ठीक है ना, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स नंबर। इसमें उन्होंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या कराया, 67 को 23 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय वंस प्लेस, पहले वंस प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरी को। 3 7 ज़ार 21, 1 2 3 6 ज़ार 18 19 20, जो कैरी था 201। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इम्पॉर्टेंट स्टेप, सबसे पहले आपने इस जो वंस वाली प्लेस है इसको 0 कर देना। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना रही। देन आपने मल्टीप्लाई करना है 2 को, तो 7 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 ज़ार 14, 4 इधर लिखा एंड 1 अबव, 2 6 ज़ार 12, 1 13 हो गया, हमने पहले भी इसको किया, तो 1340। नाउ हमने इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1541। ओके, सो सिंपली हमने 2 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन भी सीख ली। दिस इज़ वेरी इजी, यू हैव टू जस्ट मेक योर सेल्फ एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके फाइन, now this is the exercise which is given on page number 82 with the help of given key you can solve it all. So if you have any problem, do consult this one. Now we are going towards a heavy step, जो कि एक बहुत मज़े का स्टेप है, जिसमें आपने क्या करना है, आप 3 डिजिट नंबर्स आ गए। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर्स आल्सो वेरी इजी। इसमें आपने क्या करना है, मल्टी डिजिट मल्टीप्लिकेशन है। इसमें सिमिलरिटी हुई जैसे हम पहले करके आए हैं कि 3 डिजिट नंबर है 324, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट नंबर है 1 2 3 46 से। आपने स्टेप 1 में मल्टीप्लाई करना है 6 वाले पार्ट को, वंस वाले पार्ट को, 6 4 ज़ार 24, 4 2 ऊपर, 6 2 ज़ार 12 13 14, 4 एंड 1 अबव, 6 3 ज़ार 18 प्लस 1 19, 1944। दैट्स इट। नाउ सेकेंड स्टेप वॉज आर्स कि हमने प्लेस करना है 0 ऑन द वंस प्लेस एंड देन वी विल मल्टीप्लाई द टेंस वन। नाउ वी प्लेस 0, अब हम टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस वाले पार्ट को, वो क्या है 4 4 4 ज़ार 16, 6 एंड 1 एज अ गिफ्ट एज अ कैरी, 4 2 ज़ार 12 एंड 13, 4 2 ज़ार 8 सॉरी एंड प्लस 1 9, 4 3 ज़ार 12 एंड इट कम्स 12,960। सो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इट विल गिव अस 4,904। दैट्स इट। नाउ देयर आर वर्ड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने पहले की थी परवीन वाली जिसने हमारे पास सेव किए थे बकेट्स ऑफ वाटर। नाउ वी आर गोइंग टू डू
the 25 mugs of water can fill one bucket, how many mugs of water will be needed to fill 28 such buckets? First of all, we have to understand this equation, and then we will realize what we have to do, what logical operation we will apply here. It says okay, there are one bucket is filled by 25 mugs. 25 mugs fill one bucket. So हमने 28 buckets fill करनी है, तो what mugs would be required? तो हमने बताना है कि कितने mugs water के होंगे कि 28 buckets जो है ना fill हो जाएंगी. So we will do multiplication. Here we will multiply this 25 with 28 to get our desired result. So number of mugs of water for one bucket were 25, and how many buckets we need to fill? 28. So we will multiply simply by multiplying 25 into 28. We will get total number of mugs to fill these number of buckets. So we will work separately. We will multiply 25 into 28 and we get the answer 700. So here 700 is the total number of mugs which are required to fill 28. So here you have to keep in place that while multiplying 2 with 5, you have to place 0 first on the ones place. Get it? Now you have to practice of page number 68 to 84 of book work and solve all your questions on your book. Get it? Thank you so much for listening and understanding. Jazak.